Good afternoon, everyone. In today's session, we will be dealing with the MCQs of heredity and evolution. So, if we are talking about this particular chapter, heredity and evolution, we would be dealing some of the concepts given by Gregor Mendel, and Gregor Mendel is considered as the father of genetics. So all the concepts related to genetics are basically given by Gregor Mendel. We will be dealing them one by one with the help of these MCQs. These MCQs also contain some of the last year board questions, so please have a look carefully. So the first one which we will be starting is, which of the following is totally impossible outcome of the Mendel's experiment? इनमें से कौन सा मेंडल के एक्सपेरिमेंट का आउटकम नहीं है, इम्पॉसिबल आउटकम है? हैव अ लुक. Yes, the first one is, which of the following is totally impossible outcome of Mendel's experiment? See, as you all know, Mendel first experimented two pea plants, one of pure tall plants with another of pure short or dwarf plants. So, as per you, which is an impossible event out of these? So students, the answer for this particular question would turn out to be the D one. D. 4 tall plants and 1 medium height plants. Why this won't be the answer, students? Because when we have talked about the Mendel, we got to know that either the tall heighted plants were there or the short heighted plants were there. Medium height plants उसका outcome ही नहीं था. तो आपको ध्यान देना है, इसमें मीडियम हाइट प्लांट लिखा है तो ये पॉसिबल आउटकम नहीं है. दिस इज द इम्पॉसिबल आउटकम ऑफ द Mendel's experiment. Moving ahead to the next question, which of the following is not a direct conclusion that can be drawn from Mendel's experiment? इनमें से कौन सा डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं है मेंडल के एक्सपेरिमेंट का? देखिए, मेंडल का एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि ओनली वन पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड. हमने कितने डिस्कस करे हैं? अगर हम बात करें कैपिटल टी और स्मॉल टी की, हमें इसमें से एक ही ट्रेट देखने को मिलेगा, कैपिटल टी डोमिनेंट लॉन्ग हाइटेड. तो हमेशा हमें एक ही ट्रेट देखने को मिलता है. हाँ, पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक वैलिड है. सेकेंड बात करते हैं, 2 copies of each trait is inherited in sexually reproducing organism. हाँ जी, आप ये भी नोट कर सकते हैं कि हमारे पास 2 traits हैं, 2 copies हैं, तो it is also correct. For recessive trait to be expressed, both copies should be identical. ये भी ठीक है. इसका कहने का मतलब है, अगर मैं recessive trait की बात कर रही हूँ, recessive means small, तो मुझे अगर दोनों सेम होंगे, दोनों शॉर्ट होंगे, तभी ट्रेट देखने को मिलेगा. लास्ट, natural selection can alter frequency of an inherited trait. So yes, the last one is wrong. Moving ahead to the next question, which one of the following possible progeny in F2 generation of pure breed tall plant with round seed and short plant with wrinkle seed? अब वो कह रहे हैं कौन सी पॉसिबल प्रोजेनी है जो F2 जनरेशन में दिखने को मिले. पहला केस है टॉल प्लांट और राउंड सीड का, और दूसरा केस है शॉर्ट प्लांट और रिंकल्ड सीड का. कौन सी पॉसिबल प्रोजेनी है? क्या हमें टॉल प्लांट और राउंड सीड देखने को मिलेगा? हाँ, बिल्कुल देखने को मिल सकता है. फर्स्ट केस ही हमारा वो है. सेकंड, टॉल प्लांट विद रिंकल्ड सीड, जी
जब क्रॉस पॉलिनेशन होगी या सेल्फ क्रॉसिंग होगी तो हमें ये देखने को भी मिल सकता है। नेक्स्ट है शॉर्ट प्लांट विद राउंड सीड। एग्जैक्टली ये भी हो सकता है, शॉर्ट प्लांट और राउंड सीड देखने को मिल जाए, क्योंकि शॉर्ट प्लांट भी हमारे एक करेक्टरिस्टिक है। सो ऑल द अबव, यस स्टूडेंट्स, ऑल द अबव could be seen in the F2 progeny. Next, which section of DNA, ये मैंने आपको DNA का ही स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि DNA में एक पर्टिकुलर कैसा हमें दिखता है, तो which section of DNA provides information for one protein, कौन सा पार्ट है DNA का आउट ऑफ दीज 4 जो हमें प्रोटीन के बारे में बताता है? इज इट न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स और ट्रेट और जीन? कौन सा पार्ट है? Yes students, the answer which would turn out to be is the genes. Genes हमें बताते हैं प्रोटीन्स के बारे में कि where the protein is or where it could be. Moving ahead to the next one, what is the possible probability of the male progeny will be a boy? अब आप सोचिए और बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मेल प्रोजेनी है वो बॉय होगी। देखिए आपने पढ़ा भी होगा कि जब सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं हमेशा जो वुमेन है, फीमेल है, वो XX ओवम देती है, बट जो मेल का स्पर्म होता है अगर वो Y है तो कॉम्बिनेशन XY देखने को मिलता है और हमारा रिजल्ट बॉय होता है। और कॉम्बिनेशन XX हो, स्पर्म अगर X क्रोमोसोम देंगे तो XX देखने को मिलेगा जो हमारी गर्ल होती है। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हुई जी? 50 प्रोबेबिलिटी। तो 50-50 केस है, या तो गर्ल होगा या तो बॉय होगा। सो हमारा क्या क्वेश्चन था? What is the probability that the male progeny will be a boy? Yes, it is 50%. Great. Moving ahead to the next question. Who have a perfect pair of X या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स? Among them किस में? गर्ल्स में सिर्फ या सिर्फ बॉयज में, या परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स बोथ गर्ल्स एंड बॉयज में, या फिर इट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स? सो परफेक्ट पेयर, हम परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम से क्या समझेंगे? या तो XX हो या तो YY हो। अब YY तो कुछ होता ही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। और XY इज नॉट परफेक्ट। तो परफेक्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमें किस में देखने को मिलेगा? इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन गर्ल्स। In which case, yes, girls only. Or further, if I would ask you, this is the first case and this is the second case. Can you tell me what is the first case denoting? The first 6 chromosomes pair is denoting a girl or a boy. The first pair of 6 chromosomes are boy or a girl. Yes, it is denoting a girl. And why a girl? Because both the pair of chromosomes are same or XX. We can even be asked that they are homozygous. Homozygous means which have same pair or same chromosomes on both the ends. The next question which we would be discussing is which one of the following can be called a characteristic? इनमें से मैं किसी को किसी की करेक्टरिस्टिक बता सकती हूँ। प्लांट्स कैन फोटोसिंथेसाइज, ये प्लांट्स की क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक है। वी हैव 2 आइज, ये हमारी करेक्टरिस्टिक है। मैंगो ट्री इज मल्टीसेलुलर, ये मैंगो ट्री की करेक्टरिस्टिक हो सकती है। और ऑल ऑफ दीज। सो विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड अ करेक्टरिस्टिक? किसको हम करेक्टरिस्टिक कह सकते हैं? जी, हम सबको करेक्टरिस्टिक कह सकते हैं क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ये प्लांट की करेक्टरिस्टिक्स है। हमारे पास 2 आइज हैं, ये ह्यूमन बींग्स की करेक्टरिस्टिक है। और मैंगो ट्री मल्टी सेल्युलर है, ये हमारे मैंगो ट्री की करेक्टरिस्टिक है। सिंस ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ
टू सेपरेट ट्रेट्स, कोई से भी दो सेपरेट ट्रेट्स लेकर, शेप और कलर of the seeds in the Mendel's cross on pea plant resulted in the observation ratio of, जब मेंडल ने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस को सेल्फ पॉलिनेट किया या जब उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस को ऑब्जर्व किया तो उसने कौन सा रेशियो ऑब्जर्व किया आउट ऑफ दीज फोर, विच कुड बी द करेक्ट रेशियो? Yes, great. See how we will be explaining it. Mendel took two plants. One was yellow and round, another was wrinkled and green. And when he self-pollinated, he observed this ratio. That is 9:3:3:1. And the capital shows the dominant trait, so dominant yellow, and small y shows the recessive green yellow. You must also know that the capital shows the dominant trait and small shows the recessive trait. So the answer which would be correct in this case is the 9:3:3:1. The next MCQ is different, but it deals with the cross itself. Now you are having two pink colored flowers. On crossing, जब आपने दो पिंक कलर के फ्लावर्स को क्रॉस किया, आपके पास क्या ऑप्शंस देखने को मिले? 1 रेड, 2 पिंक, 1 वाइट फ्लावर प्रोजेनी. या तो एक रेड था, 2 पिंक थे और एक वाइट फ्लावर प्रोजेनी देखने को मिली. द नेचर ऑफ द क्रॉस विल बी, कैसा नेचर होगा क्रॉस का? क्रॉस डबल फर्टिलाइज हुआ होगा, सेल्फ पॉलिनेट हुआ होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ होगा या नो फर्टिलाइजेशन? सी स्टूडेंट्स, नो फर्टिलाइजेशन कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि हमें प्रोजेनी मिली है और हमें प्रोजेनी क्या मिली है? 1 रेड, 2 पिंक, 1 वाइट. फर्टिलाइजेशन भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हुई है जो हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा. पॉलिनेशन हुई है, और हमेशा हम चाहे F1 प्रोजेनी की बात करें चाहे F2 प्रोजेनी की बात करें तो हमारा ऑप्शन ही क्या बच रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन. Great. I could see many have answered it correctly. The answer that turned out to be is self-pollination. Moving ahead to the next one. In human males, all the chromosomes are paired perfectly. Human के males में सारे chromosomes perfectly paired हैं except one, कोई सा भी एक छोड़ के. तो अनपेयर्ड क्रोमोसोम कौन सा है? कौन सा ऐसा क्रोमोसोम है जो परफेक्टली पेयर्ड नहीं है? अब वो लार्ज क्रोमोसोम है, वो स्मॉल क्रोमोसोम है, और इट इज वाई क्रोमोसोम, और इट इज एक्स क्रोमोसोम. सो विच कुड बी द क्रोमोसोम्स अमंग देम? सी स्टूडेंट्स, सब क्रोमोसोम्स परफेक्टली पेयर्ड होते हैं एक्सेप्ट एज यू कैन सी दिस X and Y chromosome in case of males. The Y chromosome is comparatively smaller in size as compared to the X chromosome. So the answer must be these two. They are not perfectly paired, and so third and fourth are coming in the C option. That is, our C option is the correct. The next, a zygote which has X chromosome inherited from the father will develop into a. देखिए, वो कह रहे हैं X क्रोमोसोम फादर से मिला है, और मदर से आप लोगों को पता ही होगा कौन सा क्रोमोसोम मिलता है. मदर का फिक्स्ड होता है और फादर का X मिला है बिकॉज इट इज द मेल which depends on which it depends that the future sex of child would be. तो अगर फादर से X क्रोमोसोम मिला है तो जो प्रोजेनी होगी वो क्या होगी? Yes students, it would be girl. And how can we explain it? That mother always gives X chromosome,
and the father further has given X. An XX progeny means that the progeny is the girl. Moving ahead to the Mendel's dihybrid cross again. Two pea plant, one with round green seeds and another with wrinkled yellow seeds, produce F1 progeny. अब इन दोनों ने मिलकर F1 progeny produce करी that have round yellow seeds. When F1 plants are selfed मतलब उनके जो हमारी progeny आई है इनके क्रोमोसोम्स को हम गेमीट्स को सेल्फ करेंगे तो F2 progeny will have new combination of characters. कुछ नए करेक्टर्स देखने को मिलेंगे F2 progeny में जो F1 में नहीं होंगे. आपको इन 4 में से वो ऑप्शन ढूंढने हैं जो F1 में नहीं है बट आपको F2 progeny में देखने को मिलेंगे. You need to search what those pair which are not present in F1 but present in F2. See, as we have discussed or it is mentioned in the question कि first progeny में कौन कौन से देखने को मिले हमें round और green और wrinkled और yellow. तो इन दोनों को छोड़ के जो भी आपको नया ऑप्शन दिख रहा है वो नहीं progeny है या इट्स अ न्यू progeny which is not present in F1. तो वो कौन सी progeny हुई? See, it is the first one, round और yellow, क्योंकि आपकी F1 progeny में round yellow characteristic नहीं थी. दूसरी जो हम ऑप्शन में देख सकते हैं वो है wrinkled green. wrinkled green भी आपकी ऑप्शन में नहीं थी. F1 progeny या तो आपकी round green थी या आपकी wrinkled yellow थी. अब आपका ऑप्शन इन दोनों में से ही नहीं है. So that means the answer would be round yellow और wrinkled green. और फर्स्ट और फोर्थ हमें किस में देखने को मिल रहे हैं? बी पार्ट में. So the answer is the B, जिसमें दोनों नए करेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जो हमारी F1 progeny में नहीं थे. They were not present in our F1 progeny. This could be explained with this cross as well. ये जब हमारे पास सिंगल था इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. मोनोहाइब्रिड नहीं, F1 progeny प्रोड्यूस हुई है. And this is the progeny F2 which is on the self pollination of the F1 progeny. Moving ahead, a trait of an organism. A trait in an organism is influenced by. जो trait है, जो characteristic है किसी भी organism में, उसे किन बातों से फ़र्क पड़ता है? क्या सिर्फ वो पेरेंटल डीएनए पे डिपेंड करता है? हमारा करेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट के डीएनए पे करेक्ट मैटर करता है या सिर्फ हमारी मेटर्नल मम्मा के डीएनए पे डिपेंड करता है या फिर बोथ मेटर्नल एंड पैटर्नल डीएनए दोनों तरफ से और नीदर बाय पैटर्नल नॉर बाय मेटर्नल. सो येस, द ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन बोथ. दोनों का ही इफेक्ट देखने को मिलेगा, बोथ मेटर्नल मामा की साइड एंड पैटर्नल फादर की साइड. तो दोनों तरफ से हमें उनके करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे हम में या एक फ्यूचर की प्रोजेनी में. नेक्स्ट, select the statement that describes the characteristics of genes. कौन इनमें से जीन्स की स्टेटमेंट को करेक्ट प्रूफ करता है? इनमें से कौन कौन सी बातें जीन्स पर वैलिड होती हैं? फर्स्ट, जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल. ये जीन्स को डिफाइन कर रहा है. नेक्स्ट, अ जीन डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स. अभी हमने पढ़ा था कि जीन कोड करता है प्रोटीन को, तो ये ऑप्शन तो नहीं है बिकॉज जीन इज अ कोड फॉर प्रोटीन्स. इन इंडिविजुअल्स इन अ गिवन स्पीशीज अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम. हाँ जी, जीन हर जगह पर्टिकुलरली लोकेटेड होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है. एंड ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो व्हाट आर द करेक्ट पॉइंट्स? ए एंड the first and the third. And which part is describing the first and the third? That is our B part. The next,
See, this question is quite simple, but need to read it correctly. In पीस, जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, परफॉर्म किया था मेंडल ने, उसके अकॉर्डिंग प्योर टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद द प्योर शॉर्ट प्लांट. प्योर टॉल था एक और दूसरा प्योर शॉर्ट था. द रेशियो ऑफ प्योर टॉल टू शॉर्ट प्लांट इज प्योर टॉल टू प्योर शॉर्ट. उसने ये नहीं पूछा कि पूरा F1 जो आपको देखने को मिला था उनका रेशियो क्या है. उसने पूछा जो उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें प्योर टॉल प्लांट्स का और प्योर शॉर्ट प्लांट्स का क्या रेशियो है. देखिए इसे अब हम कैसे समझेंगे. कितने प्योर टॉल प्लांट्स आए थे? 1. देयर वाज ओनली 1 प्योर टॉल प्लांट टू द रेशियो ऑफ प्योर शॉर्ट प्लांट. प्योर शॉर्ट प्लांट भी कितने थे? 1 थे. उसने पूछा ही नहीं मीडियम के बारे में बताओ. उसने पूछा एक प्योर टॉल था और दूसरा प्योर शॉर्ट था, उनके बारे में बताओ. तो द रेशियो ऑफ प्योर टॉल टू प्योर शॉर्ट वुड टर्न आउट टू बी व्हाट? 1:1. डू नॉट गेट कंफ्यूज, द आंसर वुड बी द C1. आप फिर से मेंडल के एक्सपेरिमेंट पर जाएंगे और सोचेंगे द रेशियो वॉज 3:1. 3 टॉल आए थे 1 शॉर्ट आया था. नहीं, वो जनरल था, बट उसने कहा रेशियो बताओ प्योर टॉल का प्योर शॉर्ट से. तो टॉल भी एक था और शॉर्ट भी एक था प्योर, और उनका रेशियो आएगा 1:1. Moving ahead to the next question, it's just the general and you all know. In a normal cell of human body contains 46 pair of chromosomes. अगर हम normal cell बात करें human body की, कितने chromosomes contain करता है वो? 46. Then the number of chromosomes in a sex cell of a human being. Human being में कितने pair of chromosomes होते हैं? अगर एक नॉर्मल सेल ह्यूमन बॉडी का 46 कंटेन कर रहा है तो सेक्स सेल कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन कर रहे हैं? इट कुड बी 60, इट कुड बी 23, इट कुड बी 22 और इट कुड बी 40. यस, दे आर 23. 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेक्स सेल में. बाकी कितने पेयर होते हैं नॉर्मल सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी में? 46. You also need to remember this. In normal human body it is 46. On the other hand, in sex cell it is 23. The next question is regarding the blood group. In the human blood grouping, the 4 basic blood types are A type, B type, AB type and type O. 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स देखने को मिले. दे आर, अब ये क्या है? सिंपल डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट, या ये जो हमें टाइप देखने को मिल रहे हैं सिर्फ डोमिनेंट आता है, रिसेसिव नहीं शो होता. को डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट्स या इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रिगार्डिंग द ब्लड ग्रुप्स ऑफ ह्यूमंस? सी, इट वुड बी को डोमिनेंट ट्रेट. अब ये कोडोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कोडोमिनेंट? सी स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली. द कोडोमिनेंट ट्रेट इज द वन इन विच नीदर एल्ले इज डोमिनेंट और रिसेसिव. दोनों ही में से कोई डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं है. बोथ आर एक्सप्रेस्ड इक्वली. दोनों इक्वल क्वांटिटीज में देखने को मिलते हैं प्रोजेनी में. दोनों में से एक में रेफरेंस या प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती. तो इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप इफ इट इज आस्क्ड विच इज द ट्रेट, कौन सा ट्रेट देखने को मिलता है? रिसेसिव, इनहेरिटेंट, सिंपल, डोमिनेंट. द आंसर वुड बी कोडोमिनेंट बिकॉज इट इज द वन इन विच नीदर एलेले और डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड, दोनों ही इक्वली शो किए जाते हैं. The next, a pregnant woman has an equal chance of her baby being blood group A और blood group AB. अब एक प्रेग्नेंट वुमेन है और उसे पता है कि उसके जो बेबी है या प्रोजेनी है उसका ब्लड ग्रुप या तो A होगा या तो AB होगा.
Which one of the following shows the possible genotypes of the woman and the father of her child? अगर ब्लड ग्रुप ए आना है बच्चे का या तो ब्लड ग्रुप ए बी आना है, तो कौन सा सही कॉम्बो है इन तीनों में से रिगार्डिंग दिस? सी थिंक इफ द ब्लड ग्रुप इज ए, किसका ब्लड ग्रुप ए है? एक वुमेन का। अब जब उसका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या तो उसके बेबी का, या ए बी हो सकता है। देखिए ए कब देखने को मिलेगा? या तो क्या हो हमारे पास आई ए या फिर हमारे पास आई ओ। और ए बी कब देखने को मिलेगा? जब हमारे पास एक ही कॉम्बो हो आई बी, बिकॉज ए एंड बी बोथ आर डोमिनेंट, वो अपने साथ किसी और को नहीं आने दे सकते। तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जब उसने बोला है ए बी, तो आउट ऑफ दीज ऑल ऑप्शंस देयर इज ओनली अ परफेक्ट सिंगल कॉम्बो जिसमें ए बी आने की प्रोबेबिलिटी है। तो वो कौन सा है हमारा? आई बी और आई ओ। सो दिस वुड बी द आंसर कि बेबी को कुछ भी देखने को मिल सकता है, चाहे वो आई ए हो, बट इन दिस केस इट इज द अनदर वन वुड बी द बी ब्लड ग्रुप। उसने बोला उसे ब्लड ग्रुप ए होगा या ब्लड ग्रुप ए बी होगा। द ऑप्शन फॉर दिस, द आंसर फॉर दिस वुड बी द फर्स्ट वन, क्योंकि आई ए से ही हमें ए ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा जो हमारा ऑप्शन है, और दूसरा आई ओ से हमें देखने को मिल सकता है बी। सी अंडरस्टैंड इट वंस मोर केयरफुली। The combo would be, which of the following would be the correct combo? This would be the correct combo. Why, students? Because the first one are both A and the answer would turn out to be A. So, and the next one is IO. Out of B or O, always the B dominate. तो जब एक फादर और मदर से ए मिलेगा, दूसरे से बी मिलेगा, तो चांसेस है या तो उसका ब्लड ग्रुप ए बन जाए या तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी बन जाए। द करेक्ट आंसर वुड बी द फर्स्ट वन, सी आई बी आई ए ओ। यू कैन इवन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। ध्यान से समझेंगे। अब हमने जब ये कॉम्बो चूज करा, जो हमारा कॉम्बो है, हमने उसका टेबल बना के ऑब्जर्व किया उस कॉम्बो को। हमने एक कॉम्बो चूज करा है आई ए और दूसरा कॉम्बो चूज करा है आई ओ। जब मैंने इनको क्रॉस करा, द फर्स्ट इज आई बी, दैट मीन्स ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। नेक्स्ट इज आई ओ, दैट मीन्स ब्लड ग्रुप क्या है? ए। द नेक्स्ट इज आई बी, दैट मीन्स द ब्लड ग्रुप इज ए बी, ए और बी का कॉम्बो। द नेक्स्ट इज आई ओ, द ब्लड ग्रुप इज ए। तो आप देख सकते हैं इनसे जो भी कॉम्बोज आ रहे हैं वो या तो ब्लड ग्रुप ए बी दे रहे हैं या तो ब्लड ग्रुप ए दे रहे हैं। तो आपको इस टेबल को अच्छे से गो थ्रू करना है, और अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये टेबल बना के भी दिखानी है। यू कैन इवन टेक अप द स्क्रीनशॉट एंड अंडरस्टैंड हाउ वुड यू प्रेजेंट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्लियरली। Moving ahead to the next one. What will be the number of chromosomes present in each gametes produced by plants? Human की बात नहीं कर रहे हैं, अब plants की बात कर रहे हैं कि कितने chromosomes होंगे plants के gametes में if the species of the plant contain 28 chromosomes in all. टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं प्लांट के बाद? 28। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ईच गैमीट में होंगे? मेल गैमीट होता है और फीमेल गैमीट होता है। टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? टोटल 28 क्रोमोसोम्स हैं। तो हमारे कितने मेल में होंगे और कितने फीमेल में होंगे? 14, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 28 है और ईच गैमीट में कितने हो जाएंगे? 14। सो द आंसर दैट वुड टर्न आउट टू बी इज 14. अब a cross between a tall plant and short plant. अब क्रॉस है दोबारा टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के बीच में, जिससे जो प्रोजेनी आई है, what
the trait would be shown in the progeny. What can we conclude by this? That tallness is the dominant trait. Tallness हमारी dominant trait है. Shortness is the dominant trait. Shortness हमारी dominant trait है. Tallness is the recessive trait. Tallness हमारी recessive trait है. और height of the plant is not governed by the gene T. अब जब gene T है ही height का, तो obviously it is responsible for governing height. So the answer would be A, that tallness is the dominant trait among them. कौन सा trait dominant होगा? Tall हमारा, tallness. So students, the best trait are always superior. आपको ध्यान रखना है, जो हमारा best trait होता है वो हमेशा superior होता है, बड़ा होता है. और यहाँ पे tallness हमारा dominant trait है. The next one. In human males, all the chromosomes are paired perfectly. सारे chromosomes correctly paired up होते हैं या pair बन जाते हैं. Except what? कौन सा ऐसा human का pair है जो correctly paired नहीं होता among them? You need to tell the unpaired chromosome which is not perfectly paired. Since all the chromosomes in the males are perfectly paired, सब perfectly paired है, ऐसा कौन सा pair है जो perfectly paired नहीं है? It is the pair of which two chromosomes? Large chromosomes, small chromosomes? Yes, it is the pair of X and Y chromosome. तो दोनों का combo है. It is the combination of X and Y chromosome because the Y chromosome is comparatively short and of small size than X chromosome. As you can see, this is small and these are of equal size. तो जो perfectly paired नहीं है वो हमारा X और Y chromosome है. The next, which of the following determines the sex of a child? इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सही से बताता है और एक चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करता है, एक प्रोजेनी का सेक्स डिटरमाइन करता है? तो कौन सी बात ठीक है? द लेंथ ऑफ द मदर्स प्रोजेनी प्रेगनेंसी, द लेंथ ऑफ द मदर्स प्रेगनेंसी, कितने टाइम पीरियड तक एक वुमेन प्रेग्नेंट रही है. सी इट्स द सेम फॉर एवरीवन, नियर अबाउट 9 months. तो एक लेंथ ऑफ मदर्स प्रेगनेंसी से मेल और फीमेल डिसाइड नहीं हो सकता. लेंथ ऑफ द टाइम बिटवीन ओव्यूलेशन एंड कॉपुलेशन. ओव्यूलेशन मीन्स मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का कंबाइन होना और कॉपुलेशन मीन्स यूट्रस में प्लेस हो जाना. इससे भी सेक्स डिटरमाइन नहीं किया जा सकता किसी भी बेबी का. द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन द ओवम. ओवम ऑलवेज कंटेन एक्स क्रोमोसोम. ओवम में कभी वाई क्रोमोसोम आता ही नहीं है. सो दिस कुड ऑल्सो नॉट बी द आंसर, द प्रेजेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन एन ओवम. द आंसर वुड बी द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम इन अ स्पर्म बिकॉज इट इज द स्पर्म विच is responsible for the sex of the child. The female, the ovum always gives X chromosome. Ovum हमेशा X chromosome ही देती है, female हमेशा X chromosome देती है. It just depends upon the Y or the male who tells what the chromosome would be. So XX would result in girl or female and XY would result in boy. So these MCQs would be just for the session of today. We will be meeting again with the complete set of MCQs of some different chapter. Thank you.